आज नहाए नहीं, चलो बढ़िया तैयार हो गए। पता नहीं लग रहा अभी नहाए है कि नहीं नहाए। सब सेट हो गया, बढ़िया मज़ा आ गया यार। यार सच में आज ना मूड ही नहीं था नहाने का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे भाई साड़ियों का काट देना, लगा दो चिपका दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी भाई मैं नहाया नहीं हूँ आज सच में यार, बस आज मूड नहीं किया नहाने का यार। बस क्या बताएं यार। ऑडियो लीक्ड का आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि हर किसी की ऑडियो लीक हो रही है, किसी ना किसी की ऑडियो लीक होती जा रही है। ठीक है, और कुछ ही दिनों पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ही दिनों पहले एक ऑडियो लीक हुई थी। कन्हैया मित्तल का मैनेजर था, कपिल नाम था उसका। उसकी एक ऑडियो लीक्ड हुई थी कि वो एक प्रोग्राम के 8 लाख रुपए मांग रहा है कि हाँ मैं 8 लाख रुपए इस प्रोग्राम के मांग रहा हूँ। तो किसी ने मतलब उस चीज़ की ऑडियो एक लीक्ड की है कि इसने मेरे से 8 लाख रुपए मांगे। ठीक है, और उसमें हालांकि उसने बताया है, चलो एक बार आप सभी ऑडियो सुन लेते हैं। मेरे को भी अभी पूरी ऑडियो मैंने सुनी नहीं है। ऑडियो सुनते हैं भाई, ऑडियो प्ले करते हैं एक बार भाई। तो रुको जरा, सबर करो। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ? ਬਜਟ ਭਾਜੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ? ਸਾਊਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕ ਰਾਈਡਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਪਿਲ। ਕਪਿਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਨੇਜਰ। ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਧੱਕਮ ਧੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਡੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਾ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ? ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚ। 38 ਸੈਕਟਰ? 32 ਭਾਜੀ, 38 ਨਹੀਂ 32। 32 ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ? ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਵੀ 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੇਵਾ ਦਲ ਚੇਤਨ ਬਵੇਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚलो ठीक है ब्रदर, ठीक है, ओके। तो ये वो ऑडियो है जो आपने सुनी अभी, आपने पहले भी सुनी होगी। तो इस ऑडियो में 8 लाख का जिक्र हुआ है। साफ तौर पे ये कह दिया कि मेरा लाइटिंग का खर्चा है, मेरा लाइव टीम का खर्चा है, ठीक है, मेरा मतलब जो कॉस्ट्यूम म्यूजिशियन है उसका खर्चा है, ठीक है। और बाकी उसने ये भी कहा है कि आप चलो एक बार ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं।
अच्छा। लेकिन वो बंदा उसकी बात को इग्नोर करके सिर्फ 8 लाख के मुद्दे को ही बड़ा कर रहा है कि हाँ तुमने 8 लाख रुपए कैसे मांगे। हालांकि उसने कह दिया भाई चलो ऑफिस में बैठ के अपन बातचीत करते हैं। देखो जब एक इंसान जो प्रोफेशनलिज्म में आता है तो उसको सारी चीज़ें का पता होता है, ठीक है, उसके खर्चे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि उसने बाद में ये भी कहा कि मास्टर सलीम 3 घंटे का शो का शायद 1.5 लाख रुपया लेता है। तो उसके मतलब जब वो शो लगाता है तो बड़ी भीड़ आ जाती है, बंदे नाचने लग जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो भाई तो कन्हैया मित्तल जी के पीछे क्यों पड़ा है भाई? तो मास्टर सलीम को ले आ इस बार भी, तुमने लोगों को नचाना ही तो है, तो मास्टर सलीम को ले आ। कोई ज़रूरी थोड़ी भाई तूने कन्हैया मित्तल को ही लेके आना है। बहुत सारे टैलेंट सिंगर हैं जो कम से कम पैसों में भी आ जाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्हैया मित्तल को ही आपने लेके आना। हाँ अगर आपका बजट नहीं है तो आप कांटा मार दो। और भी बहुत सारे सिंगर हैं, जगराते करते हैं, बहुत धार्मिक स्थानों पे करते हैं। पर भाई इस विषय पे आप ये गलत राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब मान लो कोई कथावाचक है, कोई कथा करने आता है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, मैं किसी के भाई खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं मान लो कोई भी कथावाचक है, वो मतलब कहीं भी प्रोग्राम अपनी कथा करने जाता है तो पैसे लेता है। 10 लाख से शायद स्टार्टिंग होती होगी, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तब तो उनकी कोई ऑडियो लीक नहीं होती कि हाँ उस कथावाचक ने मेरे से इतने पैसे लिए। तब तो आप सब भाग के देते हो भाई आप कथा करने आओ, ये लो पैसे। हालांकि उनका मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती, ठीक है। यहाँ उनका कह दे कि अपन लाइव स्ट्रीम वगैरह होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, लाइटिंग्स होती है, ठीक है, वो सारा पंडाल पहले ही रेडी होता है। अच्छा। ठीक है। तो अगर भाई इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को पूरी नॉलेज इस बारे में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब लाइटिंग का उनका भी खर्चा हो, म्यूजिशियन उनके साथ भी आते हों, ठीक है, इस चीज़ का मेरे को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद उनका मतलब इतना कॉस्टिंग नहीं आती, ठीक है। तब तो कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता भाई आप 15 धर्म का काम है तो आप 15 लाख मत लो, कम में काम कर दो, ठीक है। आप 15 लाख ना लो, 5 लाख में कथा कर दो, क्योंकि वो आपको जोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में आपको बता रही हैं। मतलब जिन लोगों को धर्म के बारे में नहीं पता कि धर्म क्या शिक्षा देता है, क्या संदेश देता है, उनके बारे में वो नॉलेज आपको बता रही हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो उस हिसाब से तो उनको तो भाई फ्री में सेवा करनी चाहिए, उनको फ्री में ही ये काम करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को एक धर्म के प्रति जोड़ रहे हैं। लोग जिनको मतलब दुनिया पे आने का मकसद नहीं पता कि क्या उनका मकसद है, किस लिए वो धरती पे आए हैं, तो मतलब उस चीज़ के बारे में वो लोगों को बता रहे हैं। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए भाई, तो इसमें कोई पैसा नहीं होना चाहिए। तब आप उनको क्यों नहीं बोलते भाई कि तुम 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? मेरे को तो ये बात भाई समझ से बाहर है, ये अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई। तो बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो मतलब पैसे लेते हैं और कथा करते हैं, तो फिर उनका तो मतलब एक बिजनेस हो गया। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो ये गुरु है, वो एक बिजनेस हो गया, उन्होंने मतलब आपसे पैसे ले लिए और कथा कर दी। तो ये एक राजनीति, या तो ऐसा कह सकते हैं कि उनको किसी ना किसी बात पे खुंदक रही थी, जो उन्होंने खुंदक निकाल ली, ऑडियो लीक करके निकाल ली भी हाँ इनकी बदनामी हो। क्योंकि एक जब इंसान ऊंचाइयों पे जाने लग जाता है तो उसको गिराने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब इसको गिराया जाए, ये बहुत ऊंचाई पे चला गया है, लोगों जलन होने लग जाती है। सही पकड़े हैं। तो मतलब ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता। यहाँ तक मैंने देखा है, हिंदू धर्म सिर्फ ये बताता है कि जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, ठीक है, इंसानियत के नाते। अब कई जगह मैंने देखा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींच लिया, मतलब ऐसे नहीं कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें या उसको उठा के मतलब हॉस्पिटल में ले जाए ना, वो काम नहीं। तो फिर वो हिंदू धर्म कहाँ गया भाई? हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि यहाँ कोई मर रहा है तो आप उसके पास खड़े रहो, ठीक है, उसको देखते रहो, तड़फता देखते रहो। तो हिंदू धर्म यही कहता है कि जो तेरा कर्तव्य है धर्म के प्रति वो कर, निस्वार्थ भाव से हेल्प कर। ऐसा नहीं हो कि तू उसकी मदद भी कर रहा है लेकिन अपना स्वार्थ भी ढूंढ रहा है, वो तो देख भाई गलत बात है।
अब भाई मैं सोशल मीडिया पे डेली इतनी वीडियोस देखता हूँ, मतलब इतने इंडिया में इतने बाबे हो चुके हैं ना भाई, मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कई बार तो। मतलब ऐसे ख्याल आता है कि भगवान तेरी नगरी में क्या कुछ हो रहा है यार। मतलब एक वीडियो शायद मेरे पास हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो मतलब उसके पास कोई आता है तो वो उसको ऐसे टांगे मारता है, ठीक है, पूरा ऐसे मोशन सा बना के उसको मतलब लाते मारता है। तो यार ये क्या है भाई, भगवान ने तो आज तक किसी को लात मारी नहीं, और तू दिखाता है कि यार मैं उसका भगत हूँ, मेरे अंदर भगवान जी आ गए, और तू उसको लाते मार रहा है। ये तो देख, ये तो एक अंधविश्वास है, इन चक्करों में ना पड़ा करो भाई। अब एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके प्रवचन सुनना, ठीक है, उनके पास शायद मेरे पास अगर ऑडियो हुई मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि उनके पास कोई आया कि मेरे पीठ में दर्द है, आप आशीर्वाद दो, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या वो उस टाइम बोला भी, देखो हम हैं सीधे साधे बंदे, ठीक है, भी अगर इलाज करना है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास क्या इलाज है भी, मैं क्या चीज़ का आशीर्वाद दूँ भी तू ठीक हो जाए भी। वो तो तेरे कर्म है, जो तूने कर्म किए हैं वो तू काट रहा है, इस जन्म में भुगत रहा है। जो तेरे पिछले जन्म में जो तेरे पाप हैं, जो कर्म है, वो तू इस जन्म में भुगत रहा है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो तेरे को ठीक हो जाएगा, जब वो तेरा जो भयानक कर्म है वो कट जाएगा तो तू ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा निश्चित है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे साथ होगा ही होगा, क्योंकि धर्म कभी भी किसी का बुरा करने को नहीं कहता। तो ये मेरे को उनकी बात बहुत मतलब दिल में छू गई। एक संत को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो क्या पहन रहा है कपड़ों से, ठीक है, हाँ मेरा हेयर स्टाइल सही है नहीं है, मेरे को कैमरे के आगे कैसा दिखना है, ठीक है, मेरे को दुनियादारी के हिसाब से कैसे दिखना है। जब मैं कैमरे के सामने बैठूँगा मेरे को लाखों करोड़ों लोग देखेंगे तो मेरी फेस क्लियर आना चाहिए, मेरी इमेज बननी चाहिए, मतलब। तो वो कहते हैं एक जो संत होता है उनको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो इन चीज़ों से परे होते हैं, उनको दुनियादारी की कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, क्या हो रहा है क्या नहीं होता, वो बस अपनी भक्ति में लीन होते हैं। तो मतलब ऐसे पूरे जवाहरात डाल लेते हैं सोने के चांदी के, ठीक है, दिखाते हैं बस मैं ही गुरु हूँ, 5-5 छापे डाल लेते हैं, मतलब पूरे हाथ ऐसे डाल लेते हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि आप ज्वेलरी की ऐड कर रहे हो या धर्म का गुणगान कर रहे हो, मेरे को समझ से परे भाई भी। ये भी ऐसे भी होता है यार, मतलब धर्म के नाम पे कितना पाखंड मतलब फैल चुका है ना, ये कहने सुनने से परे है। तो मतलब एक ऑडियो लीक करके आप अपने आप को समझते हो कि यार मैं बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया। भाई कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो बातचीत हुई थी गोपनीय रखा करो ऐसी चीज़ें, ठीक है। लीक करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको फिट नहीं बैठा तो आप उसको रहने दो, मत करो। जो आपको फिट बैठता है, जितने बजट में फिट बैठता है आप कर लो, बस इतनी सी बात है। इसको आप लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हो कि हाँ मतलब मैं उसको गिरा दूँ, उसके कोई उसको बुक ना करे आगे के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक तौर पे देखी जा सकती हैं, इन चीज़ों को आप छोड़ो और राम राम का गुणगान करो भाई। यही सबसे बड़ा कर्म है और यही सबसे बड़ा धन है और कुछ नहीं है। आजकल मतलब दिखावा ज़्यादा हो चुका है, धर्म के नाम पे दिखावा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उसको मानने वाले जो, मेरे को लगता है कि यार जो धर्म को सही तरीके से मानते हो ना, बहुत ही कम परसेंटेज लोग होंगे जो धर्म को पूर्णतः रूप से मानते होंगे। नहीं तो आजकल भाई दिखावा चल रहा है, जिधर मर्जी चले जाओ हर जगह दिखावा ही है भाई। ऐसे ऐसे न्यूज़ें आती हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कई बार, यार ये भी हो सकता है कि धर्म के नाम पे इतनी लूट पाट ये चल रहा है, यार क्या है ये। और मेरा किसी भी धर्म को अपमान करना या गलत बोलने का मेरा कोई मकसद नहीं है भाई, ना ही मैंने बोला है, ठीक है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उनसे। धन्यवाद।